Welcome back again. This is the second part of your national income accounting. Already we have done the previous part where we learnt so many concepts, and further we will be doing now. Today onwards we will be starting the numericals and all the things related to numericals. Let us understand what is investment. Anything which help in increasing the capital formation of a country is investment. Okay, investment are of two type, gross and net. If you talk about gross concept and net concept, whole of the national income accounting you will be doing the gross concept and net concept, and in these concepts what will you be doing? Depreciation, which is an important element. So if it is gross investment, it is inclusive of depreciation, and whenever you want to go to the net concept, then it would be if you want to go for net concept, then it would be exclusive of depreciation. Got this? So जब भी आपको gross से net पर जाना है तो आपको क्या करना है? gross में से depreciation माइनस करना है. ये तो बात हुई फॉर्मूले की. अभी हम बात करते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या हो सकता है. द टोटल कैपिटल फॉर्मेशन इन अ गिवन पीरियड इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. It includes both gross fixed capital investment and stock investment. What is this stock investment? That is raw material, etc. It is always inclusive of depreciation. And when we talk about net investment, then gross capital formation is exclusive of depreciation, or you can say gross capital formation minus depreciation or consumption of fixed capital. Other name of depreciation is consumption of fixed capital. So coming to the next, what is then the depreciation, and what is, or other name is consumption of fixed capital. So depreciation is the loss in the value of assets due to two reasons: normal wear and tear and expected obsolescence. Earlier it was accidental damage also, like आपकी टूट फूट होती रहती है थोड़ा सा इधर उधर करने में, that is also the part of depreciation. So depreciation is what? It is the net loss in the value of fixed assets due to normal wear and tear and obsolescence. You can understand the two causes of depreciation: normal wear and tear and expected obsolescence. Now let us understand what is obsolescence. What is wear and tear and what is expected obsolescence? What is wear and tear? जब आप चीज़ें यहाँ से वहाँ उठाते करते हैं, खसकाते हैं, तो थोड़ी बहुत टूट फूट होती है. वो सब ड्यूरिंग द यूज़. नॉर्मली जो भी एक्सीडेंटल डैमेज या हाथ से छूट गया, इस तरह की चीज़ें आती है, वो सारी आती है नॉर्मल वेयर एंड टेयर में. तो व्हेन अ पर्टिकुलर असेट इज परचेज्ड, वेयर दे आर नॉर्मली सम वेयर एंड टेयर एंड एक्सीडेंटल डैमेजेस विच कैन नॉट बी मेड गुड बाय द करंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस. सो दैट इज़ देयर. एंड ड्यूरिंग यूज़ ऑल्सो जो भी उसमें कमी हो रही है, आप पूरा साल उसको यूज़ कर रहे हो, कितना भी केयरफुली यूज़ करो, उसका कुछ वेयर एंड टेयर होता है. सिमिलरली व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कि ऑब्सोलेंस का मतलब समझिए, जो भी चीज़ आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है या टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हो जाती है, वो सब चीज़ें आती है ऑब्सोलेंसेस में. तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस लाइक एक मशीनरी है, उसके एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है कि हो सकता है कि उसकी लाइफ धीरे धीरे कम हो जाए, हो सकता है कि उससे कंपटीशन में नया वर्जन आ जाए, हो सकता है कि उसके अंदर कोई एडिशनल टूल लगाकर आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, तो वो आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई और नई मशीन ने उसकी जगह ले ली. ऑल दीज आर नोन एज ऑब्सोलेंसेस. सो ऑब्सोलेंसेस इज रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई इसकी वजह से, दूसरा कारण होता है चेंज इन डिमांड पैटर्न. यू नो, आप जैसे कई चीज़ें फैशन में होती है. एक बार आया था वेलवेट, फैशन में आ गया था. तो जब वेलवेट होता है या फिर एक बहुत ज़्यादा चिकना कपड़ा आता है जो मोटा भी होता है, तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं उनके सिलने के लिए अलग से मशीन लगती है. तो जब वो फैशन में था, डिमांड में था वो गुड, तो लोगों ने वो मशीनें खरीदी ताकि वेलवेट ईजिली स्टिच हो सके. और फिर जब वेलवेट के क्लोथिंग्स बाहर हो गए फैशन से, तो वो मशीनरीज क्या हो गई? ऑब्सोल्यूट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डिमांड पैटर्न. सो दैट इज़ देयर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. बट इसमें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस नहीं आते हैं. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस आर ऑब्सोलेंसेस बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटी. सो दैट इज़ maybe वॉर, दिस फ्लड, फेमाइंस, इन सब वजह से अगर कोई भी कमोडिटी या कोई भी मशीन, कुछ भी कारण से, इन वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से यूज़ से बाहर हो जाते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है. वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, वो कहलाते हैं कैपिटल लॉस. सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैपिटल लॉस.
So loss in the value of assets due to natural calamities like flood, earthquake, fires or unforeseen factors like war, theft etc. So ये सब कैपिटल लॉस है, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होते, ये है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस. कमिंग टू द नेक्स्ट, सो डिफरेंस यू मस्ट नो. Depreciation is the loss in the value of assets due to normal wear and tear, and it is used for several times. It is expected loss, it is unexpected loss, and depreciation is इसके लिए आप फंड बनाते हैं और इसको आप रिजर्व फंड बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. कैपिटल लॉस के लिए कोई रिजर्व फंड नहीं बनता है. दैट इज़ देयर. Now coming to the next concept is transfer payment and factor payment. What is transfer payment and what is factor payment? So factor payment is the payment of all the factors of payments, factors of production. तो जो भी factors of production है, 4 factors of production है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इनसे होने वाले जो भी प्रोडक्शन, इनको ये जो हमको कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन में, तो हम इनको बदले में क्या देते हैं? फैक्टर इनकम. लेबर, लैंड की फैक्टर इनकम हो गई रेंट, लेबर की हो गई वेजेस, कैपिटल को हो गया इंटरेस्ट और प्रॉफिट का, एंटरप्रेन्योर का हो गया प्रॉफिट. तो इस तरह से जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम होती है वो होती है फैक्टर इनकम. लेकिन व्हाट इज़ देन ट्रांसफ़र इनकम? ट्रांसफ़र इनकम इज़ इनकम विदाउट एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आपने कोई सर्विसेज नहीं लिया, आप उनसे कोई गुड्स नहीं लिया और ऐसे ही आप उनको दे रहे हैं. तो ट्रांसफ़र इनकम जनरली गवर्नमेंट देती है. अब इसका एग्जाम्पल है जैसे ओल्ड एज पेंशन है ओल्ड पीपल को, बट रिटायरमेंट पेंशन जब व्यक्ति काम करता है तब मिलती है. तो रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम है. ऑन द अदर हैंड ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम. ऐसे ही स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है गवर्नमेंट देती है अपनी तरफ से, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ऑल दीज आर द ट्रांसफ़र इनकम. दूसरा डिफरेंस क्या है? फैक्टर इनकम इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. फैक्टर इनकम इज़ बायलैटरल. आप कुछ देते हैं उसके अगेंस्ट में लेते हैं, आपको इनकम मिलती है, सो ये बायलैटरल है. ट्रांसफ़र इनकम इज़ यूनिलैटरल. आपने कुछ भी नहीं दिया फिर भी सरकार आपको विडो पेंशन है या फिर ओल्ड एज पेंशन है या फिर स्कॉलरशिप है, ये सब आपके क्या है? ट्रांसफ़र इनकम है. फ्लड विक्टिम्स को देने वाली मदद, तो जिसको बिना कुछ दिए ही मिल रहा है वो है ट्रांसफ़र इनकम. ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ाती है, इस वजह से इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. कमिंग टू द नेक्स्ट, सो अ टीचर वेज इज़ फैक्टर पेमेंट and it is included in GDP. Welfare payment to the poor, है ना? I gave you example of many things like old age pension is there or otherwise scholarship is there. So and this is the difference which is very important. It is against the factor services, it is without any goods and services in return, it is included in national income, it is not included in national income. One is unilateral, another is bilateral, so all these are there. Old age pension, free scholarship, medical facilities, all these are examples of what? Transfer income. Now old age pension is a transfer income though, but retirement pension is compensation of employees, क्योंकि ये आपने सर्विसेज दी है उसके बदले में आपको पेंशन मिल रही है, बिना किसी काम के नहीं मिल रही है. तो ये आपकी क्या है? फैक्टर इनकम और ये आपकी ट्रांसफ़र इनकम. अब आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरी. व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? जो भी आपकी कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है ना, जो भी कंट्री का जोग्राफिकल बाउंड्री है वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. सो दैट इज़ नोन एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल वाटर में 200 नॉटिकल माइल्स तक जो हमारा है एरिया, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है. इसमें 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है. हमारी एम्बेसी अगर दूसरी कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ना. जैसे इंडिया की एम्बेसी दूसरी कंट्रीज़ में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगी. सिमिलरली अगर दूसरी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे एम्बेसीज हमारे यहाँ है ना, जैसे कि USA की एम्बेसी है, फ्रांस की एम्बेसी है, तो ये अगर एम्बेसीज हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश्ड हैं तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी नहीं कहलाएगी, जबकि ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं. लेकिन ये होंगे उनकी खुद की कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक इनकम में. हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में इनका ना तो खर्चा आएगा ना इनकी इनकम आएगी. ऑन द अदर हैंड अब हम बात ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों समझ रहे हैं? आपने जो डेफिनेशन की थी GDP की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपने उसमें किया था कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. तो हमारी जो टेरिटरी में XYZ कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है,
चाहे वो MNC है, चाहे इंडियन से, चाहे NRIs है, कुछ भी प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है वो सब डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन एक ही है कि अगर यहाँ पर दूसरी कंट्री की एम्बेसीज हैं और वो कुछ लोगों को सैलरीज वगैरह दे रही है या वो कुछ अर्न कर रही है, वो जो खर्चे कर रही है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी। और इसी तरह से अगर हमारी एम्बेसी किसी और कंट्री में है तो वो वहाँ जो खर्चे कर रही है वो हमारी डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। सो दिस इज़ वाई वी आर स्टडिंग डोमेस्टिक टेरिटरी। सो डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विद इंटरनेशनल वाटर, द लिमिट ऑफ इंटरनेशनल वाटर। एंड इसमें क्या क्या आता है, एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर, टेरिटोरियल वाटर मैंने बता दिया आपको, एयर स्पेस बता दिया, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। अगर हमारे इंडियन एयरलाइंस का शिप या एयरक्राफ्ट दो कंट्री के बीच में चल रहा है तो वो हमारी कंट्री में नहीं अप्लाई कर रहा है तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्लियर? देन फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। इंटरनेशनल वाटर में अगर हमारा कोई रिग लगा हुआ है, ऑयल रिग है, उसमें हमारे हमारे वेसल्स लगे हुए हैं या फिर फिशरीज़ के लिए हमारे फिशिंग वेसल्स लगे हैं, ये सब क्या है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। फिर एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एट्सेट्रा। तो अगर हमारे मिलिट्री बेसिस, एम्बेसीज किसी और कंट्री में हैं तो भी वो हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। So understood? So domestic territory is what? It is the political frontier of the country along with the territorial water, and the second is what बताया आपको कि जो हमारे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स वगैरह दूसरी कंट्री में वर्क कर रहे हैं वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट है। शिप्स एंड वेसल्स जो दो दूसरी कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर रहे हो तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सो दैट इज़ देयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। One exception I told you, embassy, US embassy in India is a part of economic territory of USA. ये हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो हमारे इंडिया का पार्ट है। इज इट? नाउ सिटीजनशिप इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट। आप ये बात समझ लीजिए कि सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप अलग है। Citizen may not be the normal resident of that country and normal resident may not be citizen of that country. You know Akshay Kumar, he has the citizenship of Canada, लेकिन वो normal resident कहाँ का है? इंडिया का है, क्योंकि he is working here, his all economic interest lies in our country and he is working in our country for more than 1 year. Two things are necessary to be known as normal resident. We'll do the concept of normal resident also. So therefore you should know that now आप सिटीज़न हो या ना हो, लीगल स्टैम्प पे सिटीज़न कि आप उस कंट्री के सिटीज़न हो, लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। तो व्हाट इज़ दिस नॉर्मल रेसिडेंट? लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। So resident, a resident, whether a person or institution, is one whose center of economic interest lies in that country and who is living in that country for more than 1 year. I gave you an example. You know Katrina Kaif also, she is also the resident of another country, citizen of another country, but she got married here and she is living here. Her economic interest lies in India, so she is the normal resident of इंडिया। अक्षय कुमार ये है, मैंने बता दिया आपको। सो दे आर द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। इन लोगों ने इंडिया की छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ की सिटीजनशिप ले रखी है अक्षय कुमार ने, लेकिन वो क्योंकि यहाँ रहते हैं, वो यहाँ करते हैं सारा काम, तो ही इज़ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आर country. So I already told you citizen may not be necessarily normal resident and normal resident may not necessarily be the citizen of that country. ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम में हम किसको लेते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट को। सिटीजनशिप का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर व्यक्ति नॉर्मल रेसिडेंट है, उस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई कर रहा है, तो वो उसकी जो भी कमाई है वो नेशनल इनकम का पार्ट है। दैट इज़ क्लियर। Now citizenship is a legal stamp that we have done. Now resident is clear. I am really doing good in India. I should stay here. But अभी वो citizen कहीं और का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. He is the England citizen, but he would be now the normal resident of the country. अभी आपको देखना है an Indian citizen. अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ये बंदा रेसिडेंट है या नहीं इंडिया का। An Indian citizen living in Singapore for business, है ना। तो अगर सिटीज़न रहता ही सिंगापुर में है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का होगा? सिंगापुर का, हमारी कंट्री का नहीं होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन कम्स, अभी ये 2 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा और नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें 2 न्यूमेरिकल्स करने, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब तो समझिए आपकी डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या जो पढ़ा कि जो भी चीज़
जो भी प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है वो सब डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। हमें इससे मतलब नहीं किसने किया, यहाँ हम क्वेश्चन करते हैं वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। इफ इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विथ एम्बेसीज इन अनदर कंट्री एंड एक्सक्लूडिंग एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्री इन आवर कंट्री, वो सब GDP का पार्ट है। इससे हमें मतलब नहीं है कि वो हमने बनाया है या कोई अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में आके प्रोड्यूस किया है। जो भी प्रोडक्शन इंडिया की टेरिटरी में हुआ है वो सब डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, GDP का पार्ट है। ओके, तो अब आप कहेंगे कि मैडम फिर ये जो दूसरी कंट्रीज़ हम बोलते हैं कि ड्रेन आउट कर रहे हैं रिसोर्सेज, हमारी कंट्री से रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं, तो सब तो GDP में आ गया, तो फिर कहाँ बाहर गया? तो बच्चों जब हम मेन चीज़ पढ़ते हैं वो है नेशनल इनकम। GDP तो हमारी क्या बताती है? प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि हमारी इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल है कि दूसरे आए वो भी प्रोड्यूस करें, हम भी प्रोड्यूस करें, तो टोटल इतना प्रोडक्शन होगा। लेकिन नेशनल इनकम बताती है कि हमने कितना कमाया, व्हाट इज़ द अर्निंग ऑफ इंडिया। तो इसमें से जब आप GDP में से क्या करोगे? NFIA माइनस कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और NFIA कैसे आता है, नेट फैक्टर इनकम कैसे आता है? फ्रॉम में से 2 माइनस करके। तो अभी तो आपके GDP में सब आ जाएगा। फिर क्या होगा? जब हम नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो हम किस पे आ जाएंगे कि हम सिर्फ वही इनकम लेंगे जो कि नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न किया है। तो जो भी हमारे दूसरी कंट्री वाले लोगों ने इंडिया में आके MNC खोल के प्रोडक्शन किया वो उसमें से माइनस हो जाएगा। मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे है ना, अब आपका डोमेस्टिक इनकम है, तो मैंने आपको बोला कि डोमेस्टिक इनकम में क्या हो जाएगा? ऑल गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड इन द GDP इन डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि D का मतलब भी डोमेस्टिक है, बट आपके लिए क्लैरिटी के लिए मैं क्लियरली लिख रही हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन ने, चाहे इंडियंस हो, अब इंडियंस नहीं बोल सकती मैं, तो मैं क्या लिखूँगी? नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट हो बंदा या फिर नॉन रेसिडेंट हो, उसको उसने जो भी कमाया इंडिया में वो सारा का सारा GDP में आ गया। अब क्या हुआ? जब हमने नेशनल कॉन्सेप्ट पे गए, नेशनल इनकम, बाकी सब भी डिडक्ट होता है, पर मैं अभी सिर्फ आपको डिफरेंस क्या बता रही हूँ डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का। डोमेस्टिक इनकम इज़, आप अगर फॉर्मूला में करेंगे, अभी हम आगे करेंगे, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड नेशनल इनकम इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारी इनकम कहलाती है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा NDP आया था, NDP एट FC, जो भी NDP एट FC आया था, इसमें से हम क्या कर देते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देते हैं। तो इसमें ये जो नॉन रेसिडेंट का था तो हम क्या करते हैं? फीफा माइनस फीटा माइनस फीटा, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ से ये जो नॉन रेसिडेंट थे ये इनकम कहलाएगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब हम नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस हो जाएगी। तो जो दूसरों ने कमाया है ना वो नेशनल इनकम में से फीटा करके माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम जो नेशनल इनकम लेंगे वो सिर्फ हमारी होगी, लेकिन जो हम डोमेस्टिक इनकम लेंगे वो हमारे देश का पोटेंशियल बताता है, चाहे वो इंडियंस ने प्रोड्यूस किया हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इज़ दैट क्लियर? So we'll do further. I know it is a little bit difficult concept. As you move on to the next topic, the things would be clear by the end. So first of all, अभी हमने क्या समझा? Domestic income. It is the total income produced within the domestic territory of the country by all the people. हमें मतलब नहीं है वो इंडिया का है या नहीं है। और फिर हमने कहा नेशनल इनकम, यहाँ क्वेश्चन करते हु मतलब किसने प्रोड्यूस किया, इसमें हम सिर्फ वही लेंगे जो कि नॉर्मल रेसिडेंट ने प्रोड्यूस किया। और डोमेस्टिक इनकम में हम क्वेश्चन करेंगे वेयर, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, इसमें हम वो सब प्रोडक्शन लेंगे जो कि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अभी और देखना है तो आप ये देख लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, ये पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी है ना। तो ये सारा जो भी प्रोडक्शन हमारा इसके अंदर होगा, है ना, जो भी प्रोडक्शन हमारा इसके अंदर होगा ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्लस अगर हमारी एम्बेसी है वो किसी और कंट्री में है, टाटा मोटर्स, वेट अ मिनट, अगर एम्बेसी है हमारी,
ये दूसरी कंट्री में है, उसका भी जो भी आना है वो भी हमारी कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होगा। प्लस अगर मेरी कंट्री के अंदर जापान की एम्बेसी है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। दैट वे यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। फिर अब यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाला कोई भी हो सकता है। कौन कौन है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाहर प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो आएगा? नहीं आएगा। रेसिडेंट ऑफ जापान बाहर प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं आएगा। लेकिन अगर इंडिया में करता है तो आएगा जीडीपी में। अगर टाटा मोटर्स का इंडियाज़ प्रॉफिट इन टाटा मोटर्स, ये चलिए आप तो ये तो आप समझ गए अच्छे से कि तो टेरिटरी में जिसने भी प्रोड्यूस किया है प्लस एम्बेसी, एंड टेरिटरीज में जिसने भी प्रोड्यूस किया है माइनस एम्बेसी ऑफ अदर कंट्री, दैट इज द डोमेस्टिक इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फ्रॉम, मैंने कहा था आपको फीफा माइनस फीटा इज नेट फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीटा। फीफा क्या है? जो हमारे लोग बाहर कंट्री में काम कर रहे हैं, है ना। आपको पता है कि हमारी भी कंट्री की कई ऑफिसेस हैं बाहर, कई सिटीजन्स ने इंडस्ट्रीज़ खोल रखी है ना। लक्ष्मी निवास मित्तल ने खोल रखी है, कई इंस्टीट्यूशंस इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं तो वो भी अर्न कर रहे हैं। कई लोग भी वहाँ पर जाकर नौकरियाँ करते हैं और वहाँ पर अपना पैसा यहाँ पर भेजते हैं, हालांकि वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। लेकिन अगर आपका फ्लैट है ना, आपने लंदन में कोई फ्लैट खरीद रखा है और उससे रेंट आ रहा है तो वो आपकी क्या होगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपने वहाँ पर जॉब किया है, आपको इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पर भेज रखा है, आपकी इंडियन एम्बेसी वहाँ पर है जापान में, तो वहाँ आपको जो भी सैलरी मिल रही है वो तो वो तो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट रहेगी, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होगी। क्लियर? तो अगर हमारा कोई भी बंदा बाहर जाके नौकरी कर रहा है या फिर वो जो बिज़नेस कर रहा है उससे प्रॉफिट अर्न करके आ रहा है, वो हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर मैंने कहा कि जीडीपी में तो हमने सबको ले लिया था, जो बाहर के लोग भी हमारे वहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसमें से वो जो नेट प्रॉफिट कमा के ले रहे हैं टैक्स वैक्स देकर जो ले जा रहे हैं अपने साथ, वो कहलाएगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और हम नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे? फीफा माइनस फीटा, तो वो आ जाएगी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इन माइनस। वाई इट इज़ इन माइनस? बिकॉज हमारे यहाँ पर बाहर के लोग इंडिया में बड़ी बड़ी एमएनसी ज़्यादा काम कर रही है और यहाँ से ड्रेन आउट ज़्यादा हो रहा है, बजाय कि हम बाहर से अर्न करके आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, क्योंकि 2 की वैल्यू ज़्यादा है, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 2 की वैल्यू ज़्यादा, जैसे कि 500 करोड़ बाहर लोग कमा के ले गए और इंडिया में लेकर आए 200 करोड़, तो इट वुड बी माइनस 300 CR। इज दैट क्लियर? सो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड फीफा माइनस फीटा इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट से नेशनल कॉन्सेप्ट में जाने के लिए, प्लस करने के लिए हमें ये लगेगा। अब बात ये आती है कि इसमें कौन कौन सा आता है। मैंने आपको बताया फैक्टर इनकम। तो अगर आपका कहीं फॉरेन कंट्री में रेंट है, आप कहीं जॉब करते हो, सैलरी है, आपका कोई बिजनेस है, वहाँ पर प्रॉफिट्स है, या आपने कहीं पर किसी के डिबेंचर्स खरीद लिए हैं किसी और कंट्री के कंपनी के और वो आपको इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम। कहाँ से? फ्रॉम अब्रॉड। और सिमिलरली जो लोग हमारे यहाँ से कमा के यही चीज़ें ले जा रहे हैं वो हो जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आई होप इट इज़ क्लियर। सो NFIA इज फीफा माइनस फीटा। क्लियर? या सो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हम माइनस करते हैं और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे पास आती है वो हम क्या करते हैं? ऐड, तब जाके हमारी नेशनल इनकम निकलती है। So national income is based on the resident contribution for production both within and outside the economic territory. Clear? Yeah. So you can see here FIFA is 60, बाहर से हम कमा के कितना लाए? 60, और फीटा हमारे यहाँ से इंडिया से कमा के लोग कितना ले गए? 50। ओके, तो डोमेस्टिक इनकम अगर 2000 थी तो नेशनल इनकम कितनी होगी बेटा? तो नेशनल इनकम कैसे होगी कि आप पहले क्या निकालेंगे? आप क्या निकालेंगे? NFIA। NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। फीफा कितना दे रखा है? 50। फीटा कितना दे रखा है? 60। नो सॉरी, फीफा इज 60 एंड दिस इज 50। सो ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 10।
ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। डोमेस्टिक इनकम कितनी दे रखी है, 2000 प्लस 10, तो डोमेस्टिक इनकम विल बी 2010। इज दैट क्लियर? सो दिस वे यू विल हैव टू डू फीटा, दिस इज फीफा, बाहर से जो आई फीफा, हमारी कंट्री से जो बाहर वाले विदेशी ले गए फीटा, और दोनों का नेट हो गया NFIA, और डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्लियर? सो नाउ we will do the different example. I already told you that national income is what? National income is equal to domestic income plus NFIA, और NFIA कैसे निकालते हैं, फीफा माइनस फीटा। तो अगर आप यहाँ देखें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये प्लस होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम मान लीजिए 1000 है ना, अब आपका प्लस NFIA है, तो NFIA यहाँ पर क्या दे रखा है, ये वर्ड नेट दिया है तो इसमें आपको फीफा फीटा नहीं करना है, नेट वर्ड ऑलरेडी फीफा और फीटा का नेट इफेक्ट है। अगर यहाँ पे दिया होता फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तब आप फीफा और फीटा समझते, वर्ड नेट इज गिवन, इट मीन्स ऑलरेडी ये माइनस प्लस करके आया है। तो अगर फर्स्ट केस में आएगा ये है तो प्लस 50 करोगे, सेकेंड केस में है अगर माइनस में है तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1000 प्लस माइनस 30 प्लस दिस, इट इज़ ऑलरेडी द वैल्यू इज़ इन माइनस, तो ये माइनस होके आंसर आपका आएगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से ये है -20 तो ये भी माइनस हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम, अब ये देखिए ये 2 अब्रॉड है, ये क्या है 2 अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो जाता है, माइनस। अगर मैं ये वाला केस समझा रही हूँ अब आपको, है ना, फ्रॉम अब्रॉड का पहला क्या हो गया, मैंने मान लिया 1000 है ना, तो फ्रॉम अब्रॉड कितना हुआ 50, तो आपकी डोमेस्टिक इनकम कितनी हो गई 1050। अब अगर यहाँ पर फिर से दूसरा केस लेते हैं ना, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में क्या हो जाएगी, प्लस पर वैल्यू थी माइनस में, तो यहाँ पर आपका 1000 माइनस 30 रुपीज़ हो जाएगा, ओके 970 रुपीज़, ओके। अब अपन लेते हैं तीसरा केस, ओके तीसरा केस। अब तीसरे केस में क्या है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये 2 वर्ड आ गया, फ्रॉम नहीं है तो 2 है तो माइनस होगा, फ्रॉम है तो प्लस होगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वही 1000, ओके माइनस 2 अब्रॉड कितना है माइनस, तो ये कितना हो गया -20, ओके। तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, तो ये कितना हो गया 1020। गॉट दिस? अब अगर थर्ड केस लेती हूँ मैं, थर्ड केस में क्या है, 2 अब्रॉड प्लस में दे रखा है, तो फिर से क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1000 माइनस नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, ओके। तो 2 अब्रॉड यहाँ कितना दे रखा है, फोर्थ केस कर रहे हैं हम, तो 1000 माइनस प्लस 10, तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, 1000 में से 10 चला जाएगा, 990 रुपीज़। इज़ दैट क्लियर? तो आपके ये चारों केसेस ध्यान रखें, इसमें NFIA में फ्रॉम तो प्लस होता है, मतलब N तो है ही, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो आपका प्लस का साइन लगेगा, ओके। और अगर ये माइनस है, 2 अब्रॉड है तो माइनस का साइन लगेगा। तो आप बहुत केयरफुली पढ़ना, ये 2 दे रखा है या फ्रॉम दे रखा है। फ्रॉम के दोनों केस में प्लस प्लस का फॉर्मूला लगेगा और इसमें माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। So this way you will have to solve the questions by carefully reading whether it is written net factor income from abroad or net factor income to abroad. Is that clear? है ना? अब नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू NNP एट FC, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ड है, ये वर्ड जो है नेशनल इनकम, नेट एंड फैक्टर कॉस्ट, पूरा फॉर्मूला जो है नेशनल इनकम का इन 3 चीज़ों में घूमता है। वर्ड आपको देखना है नेट या ग्रॉस,
ग्रॉस नेट का डिफरेंस बता देते हैं। क्या डिफरेंस होता है अभी इसके बात करते हैं हम। नेशनल या डोमेस्टिक, उन दोनों का डिफरेंस तो आप कर चुके हैं। डोमेस्टिक में NFI इंक्लूड नहीं हो रहा था, नेशनल में हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, NFI। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इसका डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वन बाय वन वी विल डू। अभी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम आपको क्लियर हो गया होगा, तो डिफरेंस देख लें। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, एंड दिस इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में कमाया हो, कहीं से भी कमा के आए हो, पर वो नॉर्मल रेसिडेंट है, तो दोनों की इनकम आ जाती है नेशनल इनकम में। ओके, और इट डज़ नॉट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें फीफा नहीं होता है, उसमें फीफा फीटा दोनों का नेट इफेक्ट आता है, तो फीफा इंक्लूडेड होता है। क्लियर, दैट इज़ द डिफरेंस। अब है, विल द फॉलोइंग बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक इनकम में हम नहीं लेते इसको, है ना, डोमेस्टिक इनकम में हम इसको नहीं लेते, हम इसको किस में लेंगे, नेशनल इनकम में। सैलरीज टू इंडियन रेसिडेंट्स, रेसिडेंट कहाँ कहाँ है, इंडिया का, आपको ये देखना है कहाँ कमाया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट से मतलब नहीं है। लेकिन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, क्या रशियन एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इज इट डोमेस्टिक टेरिटरी, आंसर इज नो, नहीं है, ये रशिया का पार्ट है, भले ही वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश्ड हो, तो इसलिए ये डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। ओके, नॉट इंक्लूडेड। अब आया प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन बैंक्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया, है ना। अब यहाँ पर फिर बात आती है कि कहाँ पर, आपको एक ही क्वेश्चन करना है डोमेस्टिक में कि कहाँ प्रोड्यूस हुआ। अब ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक, कोई बात नहीं, हुआ कहाँ पर प्रोड्यूस, इंडिया में, इंडिया के अंदर हुआ तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो ये इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, नो मैटर किसने किया है, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, उससे हमको मतलब नहीं कहाँ हुआ है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा, हाँ भाई आएगा। दूसरा क्या है, प्रॉफिट अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। अभी फिर बात है, कंपनी कहाँ पर है, सिंगापुर में, क्या सिंगापुर इज इट द डोमेस्टिक टेरिटरी, नो, तो ये नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बिकॉज सिंगापुर इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर आगे नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू रेसिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। भाई इंडियन एम्बेसी कहाँ पर हो रहा है, जापान में, ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक एक्सेप्शन बताया था, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, क्या इंडियन एम्बेसी कहीं भी हो, हमारे इंडिया का पार्ट है, यस, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, यस, तो फिर ये इंक्लूड होगा। तो यू हैव टू क्वेश्चन ओनली वन थिंग, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, किससे मतलब नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि अभी हम डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन होगा कहाँ प्रोड्यूस हुआ, अगर वो इंडिया में हुआ है तो XYZ किसी ने भी किया, सब डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। और एक एक्सेप्शन आपको बता ही दिया कि अगर हमारी एम्बेसी जैसे यहाँ पे बताया जापान में है तो भी वो इंडिया का पार्ट हुई, और जैसे यहाँ पे रशियन एम्बेसी इंडिया में है तो भी वो इंडिया का पार्ट नहीं है। तो all main things are being included in this. I hope you will be able to answer whether the following will be included in domestic income or not. What is the next? Depreciation. तो हमने एक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, क्या कॉन्सेप्ट कर चुके हो आप, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक में क्या आता है, जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, उसमें अगर हम बाहर से प्रोड्यूस हुआ का नेट इफेक्ट और अपने वाला जो बाहर लेके गए इंडिया से, फीफा माइनस फीटा ऐड कर दो, हम नेशनल इनकम पर आ जाते हैं। क्लियर। अब आया कॉन्सेप्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का। भाई ये क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें जब ग्रॉस से जब हमें नेट पर जाना होगा, अभी मैं इसको सिंपल लेती हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके। तो अभी मेरे को चेंज सिर्फ करना है ग्रॉस से नेट, बाकी डोमेस्टिक ही रहना है, इससे मेरे को अभी मतलब नहीं है। प्रोडक्ट तो कॉमन है, मार्केट प्राइस पर रहेगी, अभी मुझे फैक्टर प्राइस से मतलब नहीं है, तो मुझे एक चेंज करना है इसमें। वो चेंज क्या है, ग्रॉस से मुझे नेट पर आना है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस से नेट पर आना है। तो मान लीजिए आपकी वैल्यू 1000 रुपया है, इसमें से आपको कंजम्पशन ऑफ कैपिटल जो कि मैंने क्या कहा था, किसका नाम है,
डेप्रीसिएशन का। अगर मुझे डेप्रीसिएशन की वैल्यू 100 दे रखी है तो मुझे नेट कॉन्सेप्ट पे आना, तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, -100, तो मेरा नेट डोमेस्टिक आ जाएगा कितना, 900 रुपये। गॉट दिस? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट? इट इज ओनली डेप्रीसिएशन। उसका दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। गॉट दिस? सो ग्रॉस और नेट, इन ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। भाई कभी उल्टा भी जाना पड़ सकता है, तो उल्टा जाते समय डेप्रीसिएशन क्या कर दोगे, प्लस, और नीचे आते समय डेप्रीसिएशन क्या करोगे, माइनस, या माइनस डेप या प्लस डेप। क्लियर? नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप, ग्रॉस से नेट पर आना है माइनस डेप्रीसिएशन। लिख लीजिए। सो दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है, डेप्रीसिएशन। ओके, डिफरेंस बिटवीन, अब दूसरा आ जाता है। देखो मैंने कहा था आपको कि नेशनल इनकम पे, हमें जीडीपी से नेशनल इनकम पे जाना, तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें आना है ग्रॉस से नेट पर, हमें आना है डोमेस्टिक से नेशनल पर, और हमें आना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर। तो अभी हम आ चुके हैं ग्रॉस से नेट पर डेप्रिसिएशन माइनस करके, हम डोमेस्टिक से नेशनल पर आ चुके हैं प्लस NFI करके। अब हमें थर्ड चीज़ समझनी है कि हम कैसे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे। अब मार्केट प्राइस क्या होती है, जब आपका टोटल, आपकी सारी फैक्टर कॉस्ट, ये जो आपकी जो भी मार्केट प्राइस, आपकी जो मार्केट प्राइस है, वो आपने जो भी चीज़ बनाई है ना, आपने कोई भी चीज़ बनाई और उसमें जो भी खर्चा आया, अब उसको जब मार्केट में आप उतारोगे ना, तो सरकार उस पर क्या लगा देगी, टैक्स। क्लियर? तो अगर आपने टोटल खर्चा करके, एक ये मान लीजिए मैंने स्टाइलस बनाया, इसमें मेरा लेबर लगा, मेरी फैक्ट्री में मेरा कैपिटल लगा, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने खुद ने इस फैक्ट्री को चालू किया और मेरी ज़मीन लगी, तो इसमें मुझे रेंट देना पड़ा, लेबर को सैलरीज देनी पड़ी और कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ा, और मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लिया। उसके बाद मेरा ये पेन, ये मेरा स्टाइलस मान लीजिए मेरे को 100 रुपये में पड़ रहा है, तो ये क्या मैं 100 रुपये मार्केट में बेच पाऊँगी? नहीं। इस पर क्या लगेगा मुझे, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये मार्केट में कितने का आ जाएगा, 20 रुपये का। तो ये 20 रुपये क्या हो गई, इन्फ्लेटेड वैल्यू हो गई। वैल्यू तो सिर्फ 100 की थी, 20 ने तो ज़बरदस्ती प्राइस बढ़ा दी है। तो इसलिए हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड हो गया था, इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट कितने में पड़ी थी, 100 रुपया, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस कितने की हुई, 120 रुपया। लेकिन हमें नेशनल इनकम में क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट। तो हम मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम किस पे आ जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। पर अभी हम एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैक्रो कॉन्सेप्ट पे, हम पूरी कंट्री के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स है जिस पे सब्सिडी भी सरकार देती है, ये तो हमने टैक्स की बात कर ली। अब मैं बात करूँ सब्सिडी की। मान लीजिए मेरा एक क्या है, फर्टिलाइज़र का बैग है ना, ये 100 रुपये में बना था, पर सरकार ने कहा 20 हम देंगे आपको सब्सिडी, आप 80 में मार्केट में बेचो। तो मैं क्या करूँगी, इसको 80 में बेच दूँगी। लेकिन इसकी प्राइस कितनी थी जब मैंने इसको बनाया, मुझे ओरिजिनल प्राइस चाहिए, ये 100 रुपये थी, तो मैं सब्सिडी क्या कर दूँगी, प्लस। तो सब्सिडी क्या होती है, प्लस होती है, और टैक्स क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, मार्केट प्राइस से जब हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें इसमें से माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये वर्ड जब भी नेट आता है तो मतलब कुछ कुछ उसमें से माइनस हुआ है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ओके, अब ये माइनस अगर सिर्फ सब्सिडीज़ आ जाती है, अगर कहीं सब में टैक्स ही नहीं दिया होता है, सिर्फ सब्सिडीज़ दी होती है, तो ये माइनस माइनस होकर सब्सिडी प्लस हो जाएगी। क्लियर? वी विल डू इट मोर क्लियरली। सो मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो माइनस NIT। दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़, ये भी है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, अल्टीमेटली वही चीज़ आएगी। ठीक है? और अगर हमें, ये तो हमने क्या करा, जब यहाँ से यहाँ जाना है, मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट से आपको बोल दिया मार्केट प्राइस पर आओ, तो आप उल्टा कर दोगे, प्लस NIT कर दोगे, सिंपल सी बात है। इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दोगे, सब्सिडीज माइनस कर दोगे। तो जब यहाँ से यहाँ गए थे, माइनस जो जो हुआ वो यहाँ से आते समय उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। Got this? So this is the difference between NIT, that is this market price and factor cost. Okay? So अभी एक साथ तीनों हम करते हैं। हमने जो भी 3 चीज़ें पढ़ी हैं अभी,
न्यूमेरिकल करने से पहले। सो ये तो आपको क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है भाई, प्राइस बढ़ा देता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, इंक्रीज द मार्केट प्राइस। सब्सिडी क्या करती है, डिक्रीज द मार्केट प्राइस। तो इसलिए ये वापस प्लस कर दी जाती है और ये वापस माइनस कर दिया जाता है। तो फॉर्मूला आ जाता है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्लस सब्सिडीज़। क्यों, क्योंकि हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए, हमें ये टैक्स लगने से जो प्राइस बढ़ गई है उससे हमें कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट जितने में बना था वो चाहिए। सो दैट इज़ देयर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। या तो अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई है। हम दूसरे पे आते हैं। तो अब हमने चेंजेस 3 पढ़ लिए है ना, और यही आपके न्यूमेरिकल का बेस है। पहला हमने क्या पढ़ा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट एमपी से हमको इस पर कैसे आना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपको देता है फैक्टर कॉस्ट, ये आपको देता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस NIT हो जाएगा। फिर ये आपको क्या देता है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, ये आपको देता है नेट से हम ग्रॉस से नेट पर आ गए। अब हमको क्या आना है, डोमेस्टिक से नेशनल कॉन्सेप्ट पे आना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो हमें क्या करना है, प्लस NFIA। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो क्या हो जाएगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब ग्रॉस से हमें नेट कॉन्सेप्ट पे आना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा। ओके, इससे रिवर्स जाना है तो सबके ट्रीटमेंट उल्टे हो जाएंगे। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT, मुझे नेशनल कॉन्सेप्ट से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA, मुझे नेट से ग्रॉस पे आना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। इज इट क्लियर? आई होप आप क्लास 12th में हैं, इतना तो कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट एज यू पीपल थिंक ऑफ। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम GDP एट MP। तो ये आपका GDP एट MP है। GDP एट MP, इसमें मैंने बताया था ग्रॉस से नेट पर आना था हमको। नेशनल इनकम इज़ ग्रॉस, इसको बोलते हैं, नेशनल इनकम को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो अभी हमें क्या करना था, ग्रॉस से नेट पर आना था तो हमने क्या कर दिया, माइनस डेप। फिर हम देखें सेकेंड चीज़ हमने क्या चेंज की, डोमेस्टिक से हमको आना था नेशनल पर तो हमने कर दिया प्लस NFIA। फिर तीसरी चीज़ हमने क्या करी, मार्केट प्राइस से हम आ गए फैक्टर कॉस्ट पर तो हमने माइनस NIT कर दिया। तो ये 3 ट्रीटमेंट हो जाते हैं बच्चों, एंड आप सब अच्छे से समझ जाते हो, आप आराम से कर पाते हो, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल्स में ये बेस क्लियर है कि ग्रॉस नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेशनल का डिफरेंस है प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है माइनस NIT। इफ़ दिस इज़ क्लियर यू विल बी ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पर माइनस डेप्थ करा था हमने, तो आप देखिए हमने एक और चीज़ इसमें जोड़ दी। हमने क्या कर दिया, हम ग्रॉस से आ गए नेट पर। अब हमने माइनस डेप्थ किया तो हम ग्रॉस से नेट पर आ गए। अब हमने इसको डोमेस्टिक को भी चेंज कर दिया नेशनल पर। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कर दिया प्लस NFIA। अब एक और चीज़ बाकी, अभी MP पर ही, इसको FC पर ले आते हैं। तो अब हम तीसरी स्लाइड में देख लेंगे कि हम इसमें FC पर आ जाएंगे। आप सब गेस कर लो, आपको आता है कैसे आते हैं, है ना, कैसे आते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपने अब तीसरी बार क्या कर दिया, माइनस NIT, है ना। जब आपने माइनस NIT कर दिया तो क्या हो गया, ग्रॉस नेट पे बदल गया, डेप्रिसिएशन माइनस करने से प्लस NFIA से डोमेस्टिक नेशनल पे बदल गया, और माइनस NIT करने से MP किस पे बदल गया, FC पर। और अल्टीमेटली वी हैव रीच टू नेट NNP एट FC और नेशनल इनकम। गॉट दिस क्लियर? नाउ अब हम न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ऑन योर ओन। आई होप the funda is clear, and every sum will give you some challenge, so that you will have to do. Yeah, so now again we will do one sum numerical where we will just find out what national income. You will have to find out national income.
क्लियर। सो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना है, ग्रॉस को नेट पर लाना है, ओके। डोमेस्टिक को नेशनल पर लाना है और एमपी को एफसी पर लाना है, ओके। सो ग्रॉस से नेट पर लाना है तो माइनस डेप होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पर लाना है तो प्लस NFIA होगा। अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया, यहाँ फ्रॉम है, टू नहीं, अगर टू होता तो यहाँ मैं माइनस लिखती, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पर फ्रॉम अब्रॉड है। और MP से FC पे आना है तो माइनस NIT, और NIT क्या है, IT माइनस सब्सिडीज, ओके। गॉट दिस। येलो ब्लैक कलर ले ली थी, नहीं ब्लैक भी नहीं, ब्लैक इज ऑलरेडी इन यूज, आई वॉन्ट अ ब्राइट कलर, ओके। सो ये आपका ये आ गया IT माइनस सब्सिडीज। तो IT कितना दे रखा है आप देखिए क्वेश्चन में 25 में से कितना माइनस करोगे 10, तो ये कितना आ गया -15, ओके। फिर प्लस NFIA देखिए कितना दे रखा है, NFIA माइनस में दे रखा है तो प्लस लिखा है, भले ही पर -10 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल तो -40 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे -40 -10 माइनस दिस, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ NDP एट FC, और नेशनल इनकम क्या होगी 170। So this way 3 treatments we have given, gross to net, domestic to national and MP to FC. 3 treatments we have given, clear, and the numerical is solved. Coming to the one more numerical, let me take, see if I take this, तो यहाँ पर आपको NNP at FC, यहाँ भी आपको सेम ही करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो आई होप ये तो आप लोग को आ गया। बस अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक नई चीज़ है कि यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर यहाँ आपको GDP एट MP है 400, है ना, तो GDP एट MP ये है 400, ओके। अब ग्रॉस से मुझे नेट पर जाना है तो मैं माइनस डेप कर दूंगी, माइनस डेप, डेप कितना दे रखा है, डेप का अदर नेम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो -45 कर दूंगी। फिर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो मुझे करना है प्लस NFIA। अब मैं NFIA की वैल्यू ढूंढूंगी, तो यहाँ दे रखी NFIA डेट फैक्टर प्लस, आपको कंफ्यूजन करने के लिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी, इसको इग्नोर करिए। जब आपके पास नेट वर्ड अवेलेबल है तो आपको दोबारा किसी भी चीज़ को नहीं देखना है, बस यहाँ पर ये देखना होता है कि फ्रॉम है या टू है। अगर टू है तो माइनस करोगे, फ्रॉम है तो प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस NFIA, तो ये क्या है प्लस माइनस, व्हाट इज़ द वैल्यू 50, ओके। अब हमें क्या करना है, MP से FC पर आना है, तो यहाँ क्या करना है माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, ये डायरेक्टली दे रखा है। अब फिर आपको कन्फ्यूजन करने के लिए सब्सिडी भी दे दिया, NIT भी। तो जब नेट वर्ड दे रखा है तो आप सब्सिडी को इग्नोर करेंगे, सीधे NIT आप कितना उठा लेंगे -60, तो ये हो गया -60। तो योर आंसर वुड बी 245। तीनों चीज़ें माइनस हो गई, -50, -60, -45, and your answer comes. This way you will have to solve all the numericals. So many numericals are given in the book, and आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। ये PPT भी मैंने ऑनलाइन ही ली है। I am thankful to the person who has made this, and my work has been made easy. But I thought that when so much of the work is already being done by somebody, let us use that, because it is for everybody is working for the betterment of the students. So children, you will get so many numericals online available. You can solve it, and if you face further problem, then we are there. So many teachers are there. You can solve, and I hope that this national income numericals are quite clear to you. Thank you. Let us meet in the next video.